हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम लोग इनपुट्स इन जावा के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये देखें कि अभी तक हम लोगों ने जितने प्रोग्राम किए थे, लाइक एग्जांपल भी दिए होंगे, तो उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट वेरिएबल्स को डिफाइन किए थे। मीन्स अगर मैंने इंटीजर एक्स लिखा, इट मीन्स मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एक्स जो इंटीजर टाइप का है, और हमने डायरेक्ट ही उनके वैल्यूज़ दे दिए थे और उसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे थे। ये तो ठीक है, हमने प्रोग्राम बनाए जिसमें कि खुद से हमने वैल्यू दिए प्रोग्राम के अंदर, तो जितनी बार प्रोग्राम रन करेगा एवरी टाइम इट विल वर्क ऑन दिस सेम ऑपरेशन। बट इस तरीके से जो हम प्रोग्राम करेंगे वो कोड फ्लेक्सिबल नहीं होगा। कोड विल नॉट बी फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि इट विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू व्हाट यूज़र वांट्स। यूज़र अगर किसी दो नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है तो ही नीड्स टू इनपुट दैट नंबर्स इन द प्रोग्राम। इसलिए हम लोग जब भी प्रोग्राम करेंगे हम लोग यूज़र से उसका इनपुट जो भी चाहिए वो इनपुट खुद से लेंगे और हम उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे ताकि हमारा कोड फ्लेक्सिबल होगा। ओके, फॉर दैट वी नीड टू नो अबाउट वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके, सो वेन एवर आई एम राइटिंग लाइक दिस इंटीजर एक्स, what it will do, it will declare a variable named x of type int. But the question is क्या सिर्फ इतना ही काम होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता? So yes, there is some other process also, which is whenever we write something like integer x, then the compiler will declare a variable having name x. Means what is variable? Variable is actually a container which contains some value. So एक कंटेनर डिक्लेयर करेगा जिसका नाम x होगा एंड इसका टाइप होगा इंटीजर. So what is this container? Actually along with declaration it also allocates memory too, because whenever we are writing like this, so what it will do, x type of integer, and we know that integer has 4 bytes, so this block will be of size 4 bytes. So keep in mind, whenever a variable is declared, these two operations happens, and then we will initialize the variable. This is the initialization step. Okay, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि फ्लोट f इक्वल्स टू 5 + 3, तो फ्रॉम दिस लाइन या फ्रॉम दिस स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन व्हाट वी कैन से दैट दिस लाइन व्हाट इट विल डू, इट विल डिक्लेयर अ वेरिएबल नेम्ड f of type float, and it will allocate how much bytes does float take. It takes 4 bytes. It will allocate 4 bytes in memory, and in that memory what it will do, it will store 5 + 3 means 8. So this is what particularly happens whenever we declare and initialize a variable. Okay, and what happens कि sometimes the variables are given default value. Okay, so first of all let us see what the default values are given to the primitive data types. When the data type is boolean, this is the data types column and this will be its default value. Whenever the data type is boolean, it will be given a default value of false. Then byte, short, int and long, we know that all these represent whole numbers, means integer type. For this their default value will be 0. Okay, then there is float and double. These two represents decimal या fractional parts, so their default value will be 0.0, and the one remaining which is character type, it will have null default value which is represented as /u followed by 4 zeros. It will be null, means it will have nothing. Okay, but condition arises कि where we declare the variables. Okay, like
variables are of two types, which we talked about yesterday in previous lectures of function, which is the global variables and the local variables. Global variables are those which are defined inside the class. These are defined inside the class and outside the functions, outside functions. Whereas local variables are those which are local, or we can say which are declared inside functions. Okay, so that whenever we declare global variables, they are assigned default values. Okay, default values are assigned only for the global variables. And in global variables, actually there are two types of global variables in Java. One is the class variable and other is the instance variable. There is no big difference in between them, except that the class variable will contain the static keyword and instance variable will not. Okay, so let's see how this default variable and this variable memory allocation works in Java. We will see this by a program. Let's see this example. यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास डेमो डिक्लेयर किया है, जिसमें ये तीनों वेरिएबल्स कैसे हैं. ऑल दिस थ्री आर ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल, एंड दिस आर इंस्टेंस ग्लोबल वेरिएबल्स, बिकॉज इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड तो लगा नहीं है, तो स्टैटिक ना लगा तो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं. सो दिस आर इंस्टेंस वेरिएबल्स. तो हमने बात किया था कि जब भी हम ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, इनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाती है. दे विल गेट देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू. सो इन दिस आई एम प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ ए. व्हाट इट विल प्रिंट, सी क्वेश्चन में हमने कहीं भी ए को इनिशियलाइज तो किया नहीं है. सो this will get default value and it will print value of a will be equals to 0, because default value of integer type is 0. Next, value of f, this is float type, so float will have a 0.0 default value. And next is value of ch, it will be left empty because character की default value null होती है. Okay, so this is initialization of the variable, क्योंकि initialize हुआ है by default values. And when it is initialized, when the variable is global, then सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं. तो देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो int a है ये लोकल वेरिएबल है, बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन विच इज़ द डिस्प्ले फंक्शन. सो वी हैव टॉक्ड दैट वेन एवर इट इज़ वेरिएबल इज़ अ लोकल वेरिएबल, इट विल नॉट गेट डिफॉल्ट वैल्यू, कभी इनिशियलाइज नहीं होगा. सो यहाँ पे देखिए हमने ए तो डिक्लेयर किया है बट इसको कोई वैल्यू नहीं दी हुई है. सो इस केस में एरर शो करेगा कि वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड. ओके, सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस, कि जब भी ग्लोबल वेरिएबल होंगे उन्हें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे के कंपाइलर खुद ही इनिशियलाइज कर देता है. बट अगर वो लोकल वेरिएबल्स हैं तो उन्हें हमें खुद से इनिशियलाइज करना पड़ता है. अगर नहीं करें तो एरर आएगी कि वेरिएबल माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड. तो नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल सी इज पैकेजेस. तो पैकेज क्या होता है. पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लास, विच मीन्स कि सपोज आई एम राइटिंग अ प्रोग्राम विच इज़ वेरी लार्ज एंड हैज़ मेनी क्लासेस. सो जब हम सिमिलर क्लासेस को एक साथ कलेक्ट करके रख लें तो वो पैकेज हो सकता है. पैकेज कैन बी थॉट ऑफ एज अ कंटेनर. ओके, पैकेज को हम एक कंटेनर की तरह सोच सकते हैं जिसके अंदर रिलेटेड क्लास रहेंगे. ओके, और पैकेजेस को हम लोग यूज़ करते हैं. हाउ पैकेजेस आर यूज्ड, इट इज़ यूज्ड बाय द कमांड इम्पोर्ट. इस कमांड को लिखने के बाद से हम पैकेज को यूज़ कर सकते हैं. व्हाट इट डज, ये उस पैकेजेस को इंपोर्ट कर लेता है, जिस लोकेशन पे वो स्टोर्ड है वहाँ से उसे इंपोर्ट करके और हमारे क्लास के साथ यूज़ करने के लिए ला देता है. सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पैकेज होता है जो हम लोग जानते हैं यूटिल पैकेज है. ओके, यूटिल पैकेज में बहुत सारे क्लासेस हैं. हम कुछ क्लासेस के एग्जांपल लिखते हैं, लाइक एक स्कैनर क्लास है, कुछ क्लास डेट्स हैं, सम कैलेंडर क्लास एंड मेनी अदर क्लास लाइक दिस. तो
सपोज हमें सिर्फ यूटिल पैकेज के सारे क्लासेस को यूज़ करना हो, ओके। तो कीप इन माइंड, एक ये सिंबल होता है स्टार, जैसे हम एस्ट्रिक कहते हैं, एस्ट्रिक सिंबल का मतलब होता है ऑल, ओके। तो जब हम यूटिल पैकेज के सारे क्लासेस को इंपोर्ट करना होता है तो हम कमांड क्या लिखेंगे, इंपोर्ट, और ये यूटिल पैकेज जावा लाइब्रेरी के अंदर है, जावा के अंदर, तो हम लिखेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। व्हाट इट विल डू, ये यूटिल पैकेज के सारे क्लासेस को इंपोर्ट कर लेगा। और इन केस अगर हमें एक पर्टिकुलर क्लास यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग आई हैव टू यूज़ द डेट क्लास, सिर्फ डेट क्लास, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं करना है, तो हम इस स्टार के जगह पे हम उस पर्टिकुलर क्लास को लिख देते हैं। लाइक इफ़ आई एम राइटिंग इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट डेट, व्हाट इट विल डू, ये यूटिल पैकेज से डेट क्लास को इंपोर्ट करेगा। तो इन दोनों में सबसे बिग डिफरेंस ये है कि ये क्या करेगा, ऑल क्लासेस को इंपोर्ट कर देगा। स्टार का मतलब होता है सारे के सारे क्लास, और जब ये लिखे हैं तो इट विल इंपोर्ट ओनली द डेट क्लास। ये मेन डिफरेंस होता है इंपोर्ट में स्टार और स्टार ना लगाने का। अब इन पैकेजेस को हम यूज़ कैसे करते हैं, तो देखिए जब भी हम लोग कोई क्लास यूज़ करेंगे तो हम उस क्लास के लिए हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओके। तो सपोज हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम स्कैनर क्लास यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए सबसे पहले हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, से स्कैनर क्लास है तो हम उसको लिखेंगे स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाता है सिस्टम डॉट इन। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, स्कैनर क्लास था, तो हम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा लिखते कैसे हैं, क्लास नेम, देन वी राइट द ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, देन वी राइट द न्यू कीवर्ड एंड देन अगेन क्लास नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, ओके। लाइक अगर डेट क्लास यूज़ करना है तो हमें डेट के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा डेट D1 इक्वल्स टू न्यू डेट, ओके। स्कैनर क्लास एक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इन रिस्पेक्ट टू, बिकॉज दिस क्लास इज यूज टू टेक इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र। जब भी हम स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे, हम यूज़र से कुछ इनपुट करना हो तभी यूज़ होगा। सो हम इस पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखें, सिस्टम डॉट इन। तो सिस्टम डॉट इन कमांड क्या करेगा, ये कंपाइलर को बताएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है SC, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम टर्मिनल से इनपुट लेंगे, ओके। डिफरेंस देख रहे हैं ना, हम लोगों ने प्रोग्राम में बहुत बार यूज़ किया सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम डॉट इन। तो मेन डिफरेंस क्या है, ये टर्मिनल पर प्रिंट करेगा, ठीक है, प्रिंट्स ऑन द टर्मिनल। और सिस्टम डॉट इन आउट है तो प्रिंट करेगा, इन है तो इनपुट लेगा, टेक्स इनपुट फ्रॉम द टर्मिनल। ये डिफरेंस होता है सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट इन के बीच में। सो नाउ हम लोग प्रोग्राम चैप्टर क्या देख रहे थे, इनपुट्स लेने के लिए। तो हम लोग एक क्लास देख चुके हैं जो कि स्कैनर क्लास है, जिसे हम यूज़ कैसे करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन से लिखकर, और ये स्कैनर क्लास किस पैकेज के अंदर है, यूटिल पैकेज के अंदर। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ किया जाएगा उसको। तो सबसे पहली बात कि ये यूटिल पैकेज के अंदर है, तो हमें इनपुट लेने के लिए हमें यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, मान लीजिए हमने स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से वो पर्टिकुलर क्लास इंपोर्ट हुआ। अब हम क्लास बना लिए, क्लास इनपुट मान लेते हैं, ओके, एंड पब्लिक वॉइड मेन। सपोज हमें कुछ इंटीजर डेटा यूज़र से इनपुट लेनी है, तो इंटीजर डेटा इनपुट कहाँ से आएगा, इंटीजर I में अगर लेना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्कैनर क्लास जो इंपोर्ट किया उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम उसे बनाएंगे कैसे, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। इससे क्या होगा, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बन गया और कंपाइलर को पता चल गया कि वो इनपुट लेने के लिए यूज़ होगा। तो हम
जब इंटीजर इनपुट लेना होता है तो हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे नेक्स्ट इंट टाइप का यूज़ करके। तो ये क्या करेगा, ये टर्मिनल पे कुछ वैल्यू जो यूज़र इनपुट करेगा 5 और उसके बाद एंटर प्रेस किया तो ये 5 की वैल्यू आई के अंदर जाएगी। ओके, इसी तरह से जिस डेटा टाइप का हमें इनपुट लेना होता है हम उसके लिए उसका नेक्स्ट के बाद डेटा टाइप लिख के इनपुट ले लेते हैं। लाइक अगर हमें फ्लोट में इनपुट लेना है, फ्लोट एफ, तो हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ऐसे हम लोग हमेशा यूज़र से इनपुट लेंगे। तो इसे अगर देखा जाए तो जिस डेटा टाइप के लिए इनपुट लेना है कैसे कैसे करेंगे। फॉर इंटीजर डेटा टाइप वी विल राइट फंक्शन नेक्स्ट इंट। फॉर बाइट डेटा टाइप वी विल राइट नेक्स्ट बाइट। फॉर शॉर्ट वी विल यूज नेक्स्ट शॉर्ट। फॉर लॉन्ग we will use next long, and likewise for everyone. Float next float, डबल के लिए नेक्स्ट डबल, कैरेक्टर के लिए नेक्स्ट कैर, बूलियन इनपुट लेना है तो हम उसके लिए कहेंगे नेक्स्ट बूलियन। सो इन सारे डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए उसका करस्पॉन्डिंग इनपुट ऐसे होंगे। बट उसके पहले याद रखिए कि हमें स्कैनर से इनपुट लेना है तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर हमने स्कैनर ऑब्जेक्ट एससी बनाया है, स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, तो हम सारे के सारे इनपुट लेने के पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है वहाँ अटैच करेंगे एससी डॉट से, अगर एससी ऑब्जेक्ट का नाम है तो। ओके, बस एक और डिफरेंस आ जाता है कि अगर हमें कुछ यूज़र से स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेनी होती है, स्ट्रिंग वैल्यू, तो हम कैसे यूज़ करते हैं, हम उस केस में लिखते हैं एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। एससी अगर ऑब्जेक्ट का नाम है तो हम यूज़ करेंगे एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। अदरवाइज स्ट्रिंग इनपुट के लिए नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज़ किया जाता है तो स्ट्रिंग इनपुट हो जाता है। सो अगर यहीं से अगर हम लोग देखा जाए कि इफ़ वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नेम इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड हिज एज। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं लोग नेम इनपुट के लिए क्या चाहिए। नेम इनपुट के लिए हमें एक स्ट्रिंग टाइप चाहिए और एज के लिए हमें एक इंटीजर टाइप चाहिए। तो अगर हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, सपोज आई एम राइटिंग क्लास नेम इज डेमो, पब्लिक वॉइड मेन। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो दोनों इनपुट चाहिए उनके लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। स्ट्रिंग के लिए मैंने कर लिया स्ट्रिंग नेम एंड एज के लिए हमने लिख लिया इंटीजर एज। इनपुट लेकर और इसे प्रिंट करना है। सो इनपुट के लिए हमें सबसे पहले यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, तो यहाँ से यूटिल पैकेज इंपोर्ट हो गया। और दूसरी चीज़ हम क्या जानते हैं कि इनपुट स्कैनर क्लास से लिया जा सकता है, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब नेम इनपुट लेना है तो हम यूज़र को बोल देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन या एंटर योर नेम। अब यहाँ से यूज़र को कमांड मिला कुछ नाम लिखो, और नाम लिखेगा तो वो नेम स्ट्रिंग में ही जाएगा। तो हमने नेम के अंदर लिख दिया एससी डॉट नेक्स्ट लाइन। यही हमने देखा था ना, स्ट्रिंग इनपुट के लिए एससी डॉट नेक्स्ट लाइन होता है। सो यहाँ से यूज़र जो भी नाम लिखेगा वो नेम के अंदर चला गया। नेक्स्ट थिंग व्हाट वी एम डूइंग, वी आर टेलिंग द यूज़र टू एंटर हिज एज। ओके, ये स्क्रीन पे आया और एज कहाँ जाएगा, एज टाइप में, और एज का डेटा टाइप इंटीजर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट INT। ये हो गया। अब यूज़र को डिस्प्ले करना है, सो वी कैन राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सिस्टम डॉट SOP, और यहाँ पे लिख देंगे हेलो
वॉट एवर द नेम यूज़र गिव, यू आर, और यहाँ पे उसका एज हम लोग लिख देंगे। सो इस प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो टर्मिनल पे क्या होगा एक्चुअली में, टर्मिनल पे सबसे पहले लिखेगा एंटर योर नेम, एंटर नेम लिखा, यूज़र ने जो नाम लिखेगा, मान लो यूज़र ने लिखा श्याम, तो ये श्याम इस नेम के अंदर चला गया, और फिर यूज़र को कमांड लिखेगा एंटर योर एज, यहाँ से एज यूज़र ने एंटर किया 12, तो ये 12 एज के अंदर गया। इतने वाले पार्ट से ये सारे के सारे ऑपरेशन हो गए। अब क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और प्रिंट क्या होगा, हेलो एंड देन नेम, नेम मतलब श्याम, उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप, यू आर 12। देखिए हमने प्रोग्राम कर लिया। अब ऐसे ही बाकी सारे जब भी प्रोग्राम्स करने होंगे और यूज़र से इनपुट लेना है, वी कैन टेक इट बाय इंपोर्टिंग द util पैकेज and creating an object of the scanner class, and then we will use this object to take inputs of the corresponding data types. This is all about the inputs in Java. The next topic which we are going to cover is about the errors in Java. किस किस टाइप के एरर जावा में होते हैं? हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो एरर्स आते हैं वो होते हैं सिंटेक्स एरर्स। तो सिंटेक्स एरर आर दोस एरर्स जो हमारे जावा में सिंटेक्स डिफाइंड हैं किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए, उसके अलावा अगर कोई और तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो सिंटेक्स एरर्स होते हैं। लाइक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है, ओके, बट इफ़ आई एम राइटिंग लाइक दिस, जावा प्रोग्राम में मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल्स टू 5, सो व्हाट इट विल डू, इट विल रिटर्न अ सिंटेक्स एरर बिकॉज एवरी स्टेटमेंट शुड एंड विद अ सेमीकोलन। यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, अगर ये नहीं लगाए हैं तो ये सिंटेक्स एरर देगा। सेकेंड टाइप्स ऑफ जो एरर होते हैं वो होते हैं सिमेंटिक एरर्स। तो सिमेंटिक एरर कब ऑकर होते हैं? दे ऑकर ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई हैव टू ऐड 2 numbers एंड स्टोर इन अ वेरिएबल। तो हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग लिखेंगे a इक्वल्स टू 5 + 6, ये सही तरीका है। बट इफ़ यू आर राइटिंग 5 + 6 इक्वल्स टू a, दिस इज़ नॉट वैलिड बिकॉज ये प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखने का तरीका नहीं है। हमें जब भी लिखना होगा तो हमें राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है वो स्टोर होती है लेफ्ट हैंड साइड में, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होना चाहिए, राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स या कांस्टेंट होने चाहिए। दैट इज द प्रॉपर सिमेंटिक टू राइट अ प्रोग्राम, ओके। थर्ड टाइप्स ऑफ एरर आर लॉजिकल एरर्स। सो लॉजिकल एरर्स आर दोस एरर्स दैट ऑकर ड्यू टू द स्पेसिफिकेशन विच इज़ नॉट फॉलोड। लाइक हमें प्रोग्राम करना है एडिशन के लिए और हमने प्रोग्राम में a + b ना करके a - b कर दिया। देयर इज़ नो एरर इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम अच्छे से रन कर जाएगा, बट वहाँ लॉजिक की गलती है कि हमें सम करना था बट हमने वहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दिया। सो दीज टाइप्स ऑफ एरर्स आर कॉल्ड लॉजिकल एरर्स। ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स थे और इन एरर्स को एक्चुअली में कैटेगराइज किया जाता है कंपाइल टाइम एरर में और रन टाइम एरर में, okay. So compile time errors are those errors which occur during the compilation of the program. What does this mean? इसका मतलब ये है ना कि जब हम लोग प्रोग्राम को लिख के कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते वक्त अगर एरर है तो वो यूज़र को बताया जाता है ना कंपाइल करते वक्त कि हाँ
एरर अकर हुआ, किस लाइन पर हुआ, क्या एरर है। तो वो सारे जो एरर्स होते हैं वो कंपाइल टाइम एरर होते हैं, जो कंपाइल करते वक्त हमें पता चलते हैं। वेयर इज रन टाइम एरर आर दोज एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। विच मीन्स ना कि जब हम लोगों ने कोड को कंपाइल किया, वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया बिना एरर के, बट अब हम जब उस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, रन करते वक्त अगर कोई एरर आ रहा है तो वो रन टाइम एरर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यूज़र से बोला एंटर अ नंबर और वो sc.next से मैंने एंटर कराया, ओके, सो यहाँ से एग्जीक्यूट होने पर यूज़र को एक नंबर इनपुट करना है, बट व्हाट इफ़ यूज़र टाइप्स हिज नेम, तो वो इंटीजर टाइप तो है नहीं, तो इस केस में एरर आएगा कि आई हमारा इंटीजर टाइप का होना चाहिए और जो यूज़र ने दिया स्ट्रिंग दिया, टाइप मिसमैच हो रहा है। सो ऐसे एरर्स को रन टाइम एरर कहते हैं, जो एग्जीक्यूशन के टाइम पर ऑकर करते हैं। इसके आगे एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने इनपुट लेने के लिए क्या चीज़ देखा कि पहला पॉइंट था कि हमें इंपोर्ट करना था util पैकेज को, दूसरा पॉइंट कि स्कैनर क्लास की ऑब्जेक्ट बनाना, और हम क्या कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं इनपुट लेने के लिए। एक ये तरीका होता है। ये बेटर अप्रोच इसलिए है क्योंकि इसमें हम यूज़र को बता सकते हैं system.out.println के अंदर उसको क्या काम करना है। लाइक प्रोग्राम में देखा था, मैंने बोला एंटर योर नेम, तो वहाँ यूज़र अपना नाम इनपुट कर रहा है। एक दूसरा मेथड होता है, दूसरा तरीका, जिसमें मेन मेथड के आर्गुमेंट में लिख लेते हैं, मेन मेथड आर्गुमेंट लिस्ट। लाइक जब हमने मेन फंक्शन बनाया पब्लिक वॉइड मेन, और मैंने यहाँ दो इंटीजर आर्गुमेंट दे दिया, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, और यहाँ पे मैंने अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया। सो यहाँ से क्या होगा कि मेन फंक्शन के आर्गुमेंट में मैंने दो वेरिएबल्स दिए, तो यूज़र से ए और बी की वैल्यू इनपुट ली जाएगी, ओके, ये यूज़र से इनपुट ली जाएगी। बट ये बेटर अप्रोच इसलिए नहीं माना जाता है कि इसमें ना यूज़र को पता है कि ए और बी किस लिए यूज़ हो रहे हैं, ए और बी का डेटा टाइप क्या है, कुछ नहीं पता होता है। सो फॉर दिस ये वाला ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। दिस टेक्निक इज़ नॉट प्रेफर्ड, ओके। ऑल्दो दिस कैन बी यूज्ड in programs, this is not preferred because it does not specify clearly. So always for input we will use this method. So that's all about for today. Thank you.